friends, I hope all of you are doing great. Today we are going to talk about the single most crucial thing that you have to do in your JEE preparation in order to get a great rank. This is the single thing that differentiates a topper from someone who is not going to make it. Okay, you can have the same coaching, you can have the same set of books, you can have the same amount of intelligence, you can have the same amount of hard work, but if you miss this one thing, then you will simply not do well in your examination, and that one thing is called self-study. Okay, every topper, everyone who has done well in their JEE examination, including myself, they have always emphasized a lot on self-study. Before beginning, I would like to ask everyone to subscribe. Let me know in the comments what is the state of their JEE preparation, what chapter they are currently on, what is their aim, and all of those things. Okay, ताकि मुझे भी थोड़ा पता चले आपके बारे में, and you also become aware of what you have and what you don't have, right? So today we are going to talk about self-study, why it is important and what constitutes self-study. Not just कि भाई self-study क्या होता है, self-study खुद करनी कैसे, क्या appropriate method है, right? डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले यार बात करते हैं कि self-study करनी important क्यों होती है. देखिए, everything that you are acquiring right now, your coaching lectures, okay, your homework, your tests, everything, your book reading, everything that you're receiving is something which is coming from outside. Okay, your lecture, if you listen to a lecture, if you're listening to this video, you're consuming something from outside. Okay, if the teacher is teaching you a concept, it is coming from the outside. Okay, if someone is giving you homework, वो तुम्हें बाहर से क्वेश्चन दे रहा है जो तुम्हें करना है. He is imposing that on you. You might like it, you might not like it, but it doesn't change the fact that it is being imposed on you from the external. Okay, whereas self-study comes from the internal. Self-study is the opposite. You want to do something, you have a particular need that, okay, I want to study this particular chapter, I have to make notes of this particular chapter. You know, I have not revised this particular chapter's questions, so I just, pick up a bunch of questions and I try to practice them, I try to solve them. That is something coming from inside. It is not something जो तुम्हें requirement से करना पड़ रहा है, किसी ने बोला है कि वो please ये questions कर लो. नहीं. You are taking that idea from the inside of you. You are thinking कि यार ये चीज़ मेरी सच में कमजोर है, मुझे करना है. वो तुम्हारे अंदर से उसके अंदर मोटिवेशन है, कोई बाहर से पुश नहीं दे रहा है. इसलिए सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है. अच्छा हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया आपको कि हमारा ना एक JEE 2023 प्रिपरेशन के लिए बहुत ही प्यारा सा कोर्स भी चलता है ना. तो अभी जिन बच्चों का प्रिपरेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है. और इस पे 18 नवंबर तक हम एक बहुत ही प्यारा सा ऑफर भी लेके आए. आपको एक काफ़ी अच्छी प्राइसिंग पे कोर्स मिल रहा है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं. काफ़ी एक अच्छी डिस्काउंटेड प्राइसिंग मिल रही है ओनली टिल 18 नवंबर. ठीक है, इस कोर्स में वो सब कुछ तुम्हें चाहिए और एक भाई सेल्फ स्टडी को भी काफ़ी हेल्प करेगा. इसमें वैसा नहीं है कि आपको टीचर्स हम बोल रहे हैं कि अरे इतनी बजे लाइव और नहीं. हम आपको मटेरियल दे देंगे, आपको जब भी पढ़ना है आप अपनी कन्वीनियंस पे इसको लॉग इन करके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो चेक करना डिस्क्रिप्शन में जाके 18 नवंबर या उससे पहले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा. ठीक है, 2023 एस्पिरेंट्स. तो ये तो था सेल्फ स्टडी. होता क्या है कि आप अपने अंदर से आपको कमी लग रही है खुद में कि माय सरफेस टेंशन इज नॉट क्लियर और माय जीओसी इज नॉट क्लियर और आई नीड टू रिवाइज करंट इलेक्ट्रिसिटी अ बिट मोर. इट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड यू एंड फिर तुम एक्शन लेके पढ़ रहे हो. ये बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है, क्योंकि तुम में सेल्फ मोटिवेशन आ रही है. और ये सेल्फ मोटिवेशन जिस दिन सब चैप्टर्स के लिए आ गई, एट दैट पॉइंट यू बिकम अनस्टॉपेबल. क्या समझ में आया सभी को कि बाहर से कोई हमें बोल नहीं रहा है, सेल्फ स्टडी हम खुद से निकाल रहे हैं कि अरे यार ये चीज़ मेरी कमजोर है, खुद का डायग्नोस्टिक करके खुद ही सॉल्व कर रहा है. दैट इज सेल्फ स्टडी. ओके, अब करनी कैसे है सेल्फ स्टडी, ये तो हो गया कि क्या होता है सेल्फ स्टडी. अब सेल्फ स्टडी में क्या क्या करना है, हाउ इज सेल्फ स्टडी सपोज टू बी डन, डिस्कस करते हैं. तो देखिए, सेल्फ स्टडी में आपकी सबसे पहली जो स्किल होती है ना, वो होती है आइडेंटिफिकेशन. कि यार हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं, कि हम कहाँ पे वी कुड हैव डन अ बिट बेटर, वेयर वी कैन इंप्रूव. दैट इज द फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू आइडेंटिफाई. और यहाँ पे मेरी वो वाली स्ट्रेटजी बहुत काम आती है. कौन सी, A- A और A+. तो मैंने कई बार बता रखा है, जिनको नहीं बताया वापस बता देता हूँ. सारे चैप्टर्स का आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये चैप्टर मेरा A- है, ये चैप्टर मेरा A है, ये मेरा A+. अब ये क्या होता है, A- मतलब वो चैप्टर जो आपको या तो बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल खराब आते हैं. A वो चैप्टर्स हैं विच यू नो समवॉट. Okay, you can clear maybe an NCERT level or a JEE level question, but you cannot tackle everything if you are asked from that chapter. Okay, A+ is chapters in which you are very good. You can tackle 80 or 90% of the questions which are thrown from that chapter towards you, right? तो एक कैटेगराइजेशन होनी चाहिए और हमेशा एक कोशिश होनी चाहिए कि A- वाला चैप्टर A बने और A वाला चैप्टर A+ बने, जब तक सारे चैप्टर्स A नहीं हो जाते A+, राइट. तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन कि भाई यार ये चैप्टर्स हमारे सच में कमजोर है. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, राइट. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप आपका क्या रहेगा सेल्फ स्टडी के अंदर कि इन चीजों को हमको सही करना है. इसको कहेंगे रेटिफिकेशन. ठीक है, रटाफिकेशन नहीं है ये. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो चैप्टर्स हमारे सही नहीं गए उनको, मतलब जो चैप्टर अच्छे नहीं है उनको हमें सही करना है. कैसे होगा वो सही होगा वॉचिंग लेक्चर्स. ठीक है,
आपके पास एकेडमी जैसा कोई रिसोर्स हो या कोई भी ऐसी बुक हो या जो भी, वहाँ से आप चीज़ सीखें, नोट्स रीड करें, ठीक है। अब कई लोग जैसे नोट्स का पूछते हैं, देखो नोट्स के बारे में सिंपल सी बात है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसा कुछ थोड़ी है कि बच्चा, इस बच्चे ने नोट्स बनाया तो इसका सिलेक्शन होगा, इस बच्चे ने नोट्स नहीं बनाया तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा। इट इज नथिंग लाइक दैट। नोट्स इज जस्ट अ टूल, जस्ट लाइक बुक्स, जस्ट लाइक टेस्ट, एवरीथिंग इज अ टूल, राइट। अगर आपके पास पहले से बनाए हुए नोट्स होते हैं किसी चैप्टर के अच्छे खासे, भले शॉर्ट ही है, तो क्या रिवाइज करने में एकदम फटफट हो जाता है, तो उससे काफी हेल्प मिलती है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है नोट्स अच्छे, तो आप एकेडबूस्ट के फ्री शॉर्ट नोट्स एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। चाहो तो ऐप को एक रेटिंग, रिव्यू, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, ये सब कर सकते हो, अपना प्यार दे सकते हो, बट वी डोंट आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न फॉर इट, राइट। सो यू कैन चेक इट आउट। तो आप अगर नोट्स वगैरह वापस पढ़ते हो, लेक्चर्स वगैरह देखते हो, तो इससे क्या है कि आपकी चीज़ वो आपके दिमाग में बैठती है। एनसीईआरटी पढ़ते हो, राइट। सो दीज थिंग्स हेल्प यू, जो चैप्टर आपको मिसिंग है उस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करने में हेल्प करती है। एंड देन यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, ठीक है। 50 to 100 क्वेश्चंस कर लो, बहुत है, ठीक है। 50 to 100 क्वेश्चंस करो, 100 तक पहुंचने की कोशिश करो। अगर टाइम कम है, लेट्स से यू हैव ओनली 2 आवर्स, 1 घंटा पढ़ेंगे, 50 क्वेश्चंस 1 घंटे में करने की कोशिश करेंगे, राइट। इफ यू हैव लेट्स से 2-3 आवर्स, तो 50 क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा है तो 100 तक जाने की हम कोशिश करेंगे, राइट। सो हैव यू अंडरस्टूड सेल्फ स्टडी का मीनिंग क्या है? क्या आपने आइडेंटिफाई किया कि ये वाला चैप्टर मेरा कमजोर है, उसका हमने नोट्स या लेक्चर्स वगैरह वापस से स्टडी किया, एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस इन इट। ऐसे आप हर चीज को थोड़ा थोड़ा करते जाओगे ना, एवरी चैप्टर यू डू दिस एक्सरसाइज, कब वो चैप्टर A-A+ जाएगा और कब वो चैप्टर A से A+ जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, right? Just keep on doing this practice whenever you get time. So for example, it's a Sunday, you get 10 hours of free time, right? तो स्लॉट बना लो 5-5 घंटे के। आज हम कोई 2 चैप्टर पकड़ेंगे, उनकी सेल्फ स्टडी कर डालेंगे आज, ठीक है। 1-1 घंटा दोनों के नोट्स पढ़ेंगे, एंड 4 hours you'll spend on solving questions, maybe going through the notes once again in case you don't solve these questions, right? So do this kind of a practice. तो I hope सब लोगों को एक पता चला होगा कि सेल्फ स्टडी का एक बेसिक क्या तरीका रहता है, सेल्फ स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। और बातें इनके बारे में कर सकते हैं, मुझे आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको कोई चाहिए अच्छा सा। और ये सब तरीके, ये सब जो चीजें मैंने बताई है ना, इसको करने का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीका है थ्रू आवर JEE 2023 अल्टीमेट कोर्स, ठीक है। कैन यू डू ऑल दिस अलोन? यस यू कैन, नो इश्यूज विद दैट, आई एम नॉट डाउटिंग योर एबिलिटीज, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच बाय योरसेल्फ and having someone who has already done it in the most excellent way, guide you towards it, right? ये सब चीजें मैंने खुद से की हुई है, बहुत मेहनत लगा के, और फिर मैं रैंक लाया था। आप लोग खुद से मेहनत लगाओगे, डबल मेहनत करोगे, इससे काफी अच्छा है। हमारा सॉल्यूशन जो पहले से बना हुआ है उसको ले लो, इसमें आपको इस तरह के लेक्चर्स मिलेंगे जो मैंने खुद कवर किए, जहाँ पे ये इसी पर्पज से पढ़ाया जाएगा कि यार बच्चे का चैप्टर कमजोर है, उसको रिवाइज करना है, एक बार उसको रिवाइज करा दो फटाफट से, फिर क्वेश्चन भी हमने सप्लाई किया, आपको डिटेल में पढ़ना है वो भी चीज़ मिल जाएगी, राइट। तो ये पूरी चीज़ बनी ही इस पर्पज से है कि यार हाँ यार मैंने अपनी प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगाया था, बहुत चीज़ें मैंने डिस्कवर की थी, वो सब मैं बच्चे को पैकेज करके एक बार में दे दूँ, तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 18 नवंबर तक इट्स एट अ वेरी हाईली, इट्स एट अ वेरी गुड प्राइस, इट्स नॉट वेरी हाईली डिस्काउंटेड, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट भी नहीं है, बट इट्स वन ऑफ द लोएस्ट प्राइसेस वी हैव ऑफर्ड, इट्स अ ग्रेट प्राइस, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर JEE प्रिपरेशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो इसको डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं आप, टेक इट टुडे इटसेल्फ, ताकि आपका टाइम सेव हो, एंड स्टार्ट स्टडीइंग इट टुडे इटसेल्फ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, सभी स्टूडेंट्स को पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। क्या क्या बातें बोली कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोचिंग सेम हो सकती है, मटेरियल सेम हो सकता है, टीचर सेम हो सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी जिस बच्चे की बेटर है वो बच्चा बाजी मारेगा। सेल्फ स्टडी के अंदर क्या आता है कि यार आपने इंटरनली खुद के अंदर की मोटिवेशन की वजह से कोई चीज पढ़नी शुरू की, दैट इज सेल्फ स्टडी। करना कैसे? फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चैप्टर्स जिनमें आप वीक है, सेकंड है उनको सही करना। सही कैसे करेंगे? सबसे पहले नोट्स या लेक्चर्स वगैरह वॉच करना, सेकंड उनके 50 to 100 क्वेश्चंस हमें करने हैं। ये प्रोसेस आप बार बार करेंगे और ईच एंड एवरी चैप्टर यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल इन योर JEE एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।